student, how are you all? I hope all of you are doing really well. Let's start today's chapter, Internet Services and Safety. Plug-in, Internet, uses of Internet, ways to connect to the Internet, how Internet works, Internet services, online security and etiquettes. Internet. The Internet, also called the net, is one of the largest networks that links millions or trillions of computers all over the world. In our present time, many of us are already using Internet for our daily lives. It is widely used research tool providing us with access to global information and instant communication. The www and email are the two most widely used services. The Internet offers many facilities at our fingertips. Using Internet, we can send messages to others, meet new friends, do banking, make investments, do shopping, fill prescriptions, file taxes, play games, listen to music or watch movies. The biggest advantage of the Internet is that we can access it from a computer anywhere. So इंटरनेट वर्ड से और इंटरनेट से हम सभी फेमिलियर हैं, जिसको हम कॉमनली नेट कहते हैं. तो ये देखिए लार्जेस्ट नेटवर्क्स है जो मिलियंस और ट्रिलियंस कंप्यूटर्स को लिंक करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड. और आज के टाइम की बात करें तो हम सभी आज के टाइम पे अपनी डेली लाइफ में इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं और इसके बिना तो हमें ऐसा लगता है जैसे कि हमारी ज़िंदगी अधूरी हो, राइट? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं हम इंटरनेट की हेल्प से करते हैं. चाहे आप मैसेजेस आपको फ्रेंड्स के साथ भेजना हो, नए फ्रेंड से मिलना हो, बैंकिंग करना हो, इन्वेस्टमेंट, शॉपिंग, ये सारे हम इंटरनेट की हेल्प से करते हैं. तो बिगेस्ट एडवांटेज इंटरनेट का है कि आप इसे कहीं भी हो आप इसे एक्सेस कर सकते हैं फ्रॉम अ कंप्यूटर. ओके, यूजेस ऑफ इंटरनेट. वी कैन यूज इंटरनेट फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पसेस. सम ऑफ दीज आर कम्युनिकेशन, email, blogs, social networking site, chat rooms, forums. Okay, so इंटरनेट का यूज़ हम कम्युनिकेशन के लिए करते हैं. नेक्स्ट इज ऑनलाइन सर्विसेज लाइक ऑनलाइन शॉपिंग, ई कॉमर्स, लेजर एंड एंटरटेनमेंट, ऑनलाइन गेम्स, लाइव बुक्स, ई बुक्स, OTT प्लेटफॉर्म्स. जब आपके पास फ्री टाइम हो और आपको एंटरटेनमेंट की ज़रूरत है, उसके लिए आप इंटरनेट यूज़ करते हैं. लाइक आपके पास OTT प्लेटफॉर्म्स है, ओके, जहाँ पे आप कोई भी सीरीज़ बिंज वॉच कर सकते हैं, ऑनलाइन गेम खेल सकते हैं, लाइव म्यूजिक इज़ ऑल्सो देयर. एक्सप्लोरेशन, navigation, travel sites, weather forecasting, live webcams. Now, ways to connect to the internet. There are two ways to connect to the internet: dial-up connection and broadband connection. Internet works on varied bandwidth, slow speed dial-up connection और high speed broadband connection. So, दो तरीके हैं जिससे आप इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं: dial-up connection and broadband connection. Okay, so dial-up connection. A dial-up connection is a slow speed internet connection. With dial-up access, we can use a computer, a dial-up modem and a regular telephone line to dial into an ISP, that is Internet Service Provider. Dial-up access provides an easy and inexpensive way for users to connect to the internet. Some of the leading ISPs include Jio, Airtel, etc. Dial-up connection आपका slow speed internet connection होता है और dial-up access के साथ आप कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं, डायल अप मॉडेम एंड रेगुलर टेलीफोन लाइन टू डायल इनटू एन ISP. ISP होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. सो डायल अप एक्सेस जो एक ईजी और इनएक्सपेंसिव वे आपको प्रोवाइड करता है, मीन्स यूजर्स को कि वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर सके. अगर हम कुछ लीडिंग इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की बात करें तो उन पे आपके आते हैं लाइक जियो है, एयरटेल है. ओके, फैक्ट फोल्डर. The speed of modem is measured in kbps, that is kilobits per second. The word modem is derived from a combination of the words modulate to convert a digital signal into an analog signal and demodulate to convert an analog signal into a digital signal. Both the sending and receiving ends of a communication channel must have a modem for data transmission to occur. See, जो स्पीड है मॉडम की वो मेजर की जाती है kbps में, और ये वर्ड मॉडम का मतलब क्या है? ये कॉम्बिनेशन है एक्चुअली मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर का. सो मॉड्यूलेटर क्या करता है कि वो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है, जबकि जो डी मॉड्यूलेटर है वो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है. ओके, सो ये जो सेंडिंग एंड जो रिसीविंग एंड होता है कम्युनिकेशन चैनल का, उसमें एक मॉडम का होना बहुत ज़रूरी है डेटा के ट्रांसमिशन के लिए. ओके, नेक्स्ट इज ब्रॉड बैंड कनेक्शन. अ ब्रॉड बैंड कनेक्शन इज अ हाई स्पीड टेक्नोलॉजी. With broadband service, computer is usually connected to the internet the entire time it is powered on. Through broadband internet service, we can download web pages quickly, play online games, communicate in real time with others and do much more.
Many homes, schools and business users connect to the internet via a high-speed broadband internet service which can be wired or wireless. So broadband connection आपका high speed technology होता है और इस सर्विस के साथ कंप्यूटर जो आपके यूजुअली कनेक्टेड होते हैं इंटरनेट के साथ the entire time it is powered on. ओके सो ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस के थ्रू आप वेब पेजेस को बहुत जल्दी से डाउनलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन गेम्स खेल सकते हैं और दूसरों के साथ आप कम्युनिकेट कर सकते हैं. बहुत सारे जो होम्स, स्कूल्स या बिजनेस यूजर्स होते हैं वो यूजर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, इंटरनेट को कनेक्ट करते हैं वाया हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस जो आपका वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है. ओके नाउ लुक एट द फॉलोइंग ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विसेज. Digital subscriber line, that is DSL. It provides high speed internet connection using regular telephones. ये high speed internet connection आपको provide करता है और इसमें regular telephone lines का use किया जाता है. Fiber to the premises, that is FTTP. It uses fiber optic cable to provide high speed internet access to users. यहाँ पे देखिए क्या होता है, fiber optic cable का use किया जाता है. Okay, cable internet service, it provides high speed internet access through the cable television network via cable modem. और ये देखिए आपको high speed internet provide करता है through the cable television network via a cable modem. Okay, fixed wireless, it provides a high speed internet connection using a dish shaped antenna to communicate with a tower via radio signals. यहाँ पे देखिए इस्तेमाल किया जाता है डिश शेप्ड एंटेना का, ओके कम्युनिकेट करने के लिए टावर के साथ वाया रेडियो सिग्नल्स. Cellular radio network, it offers high-speed internet connection to devices with built-in compatible technology or computers with wireless modems. और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन आपको मिलता है डिवाइसेस को जिसमें आपके बिल्ट इन कंपैटिबल टेक्नोलॉजी होता है या कंप्यूटर्स विद वायरलेस मॉडेम्स. Satellite internet service, it provides a high-speed internet connection via satellite to a satellite dish that communicates with a satellite modem. ओके सो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन मिलता है, हाई स्पीड कनेक्शन आपको प्रोवाइड होता है सैटेलाइट के थ्रू वाया सैटेलाइट टू अ सैटेलाइट डिश जो कि आपका कम्युनिकेट करता है सैटेलाइट मॉडेम के साथ. एंड नेक्स्ट इज वाईफाई वायरलेस फिडिलिटी. दिस नेटवर्क यूजेस रेडियो सिग्नल्स टू प्रोवाइड हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन टू वायरलेस कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस. सो ये जो नेटवर्क है ये रेडियो सिग्नल्स का इस्तेमाल करता है. ओके और वाईफाई अक्सर हम सब लोग अपने घरों में भी इस्तेमाल करते हैं. ओके Fact folder. Wireless communication is the transfer of information over a distance without the use of electrical conductors or wires. We can use a wireless modem, that is dongle, to access information on the internet without using a phone line or any other physical connection. Wi-Fi networks broadcast radio waves that can be picked up by Wi-Fi receivers which are attached to different devices using wireless communication technology. So wireless communication में देखिए आपका ट्रांसफ़र होता है इन्फॉर्मेशन का ओवर अ डिस्टेंस बिना इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स या वायर का यूज़ किए हुए, इसीलिए तो इसको वायरलेस कम्युनिकेशन कहा गया. सो वायरलेस मॉडेम का हम यूज़ करते हैं जिसे डोंगल भी कहा जाता है इस इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए बिना किसी टेलीफोन लाइन के यूज़ किए हुए या कोई भी किसी भी बिना फिजिकल कनेक्शन का यूज़ किया. सो वाईफाई नेटवर्क जो है वो ब्रॉडकास्ट करते हैं रेडियो वेव्स को, ओके जिसको कि जो वाईफाई रिसीवर्स होते हैं उसे पिक करते हैं जो आपके अटैच होते हैं डिफरेंट डिवाइसेस से यूजिंग वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. Hotspot is a wireless network that provides internet connections to mobile computers and devices. Most of the public locations such as shopping malls, shops, restaurants, airports and hotels have Wi-Fi hotspots. Although most hotspots enable unrestricted or open access, some require a password in order to connect to the internet. Many users can share and provide wireless internet connections by creating their own Wi-Fi hotspot through a communication device like router that is connected to a broadband internet service. Some users create mobile hotspots through mobile broadband internet service via a tethered internet capable device. Tethering transforms a smartphone or internet capable device into a portable communications device that shares its internet access with other computers and devices wirelessly. सो हॉटस्पॉट आपका वायरलेस नेटवर्क है जो इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करता है मोबाइल कंप्यूटर्स को या डिवाइसेस को. तो ज़्यादा जो आपके पब्लिक लोकेशंस होते हैं ना जैसे कि शॉपिंग मॉल्स हो गए या रेस्टोरेंट हो गए, एयरपोर्ट्स है, यहाँ पे आपके वाईफाई हॉटस्पॉट्स होते हैं. सो जो हॉटस्पॉट हालांकि जो ज़्यादा जो हॉटस्पॉट्स होते हैं ये दे इनेबल अनरिस्ट्रिक्टेड और ओपन एक्सेस क्योंकि कुछ में पासवर्ड की ज़रूरत होती है ताकि हम इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं.
बहुत सारे यूज़र्स जो हैं वो शेयर करते हैं और वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन को प्रोवाइड करते हैं बाय क्रिएटिंग देयर ओन वाईफाई हॉटस्पॉट, ओके, किसी एक कम्युनिकेशन डिवाइस के थ्रू, जैसे कि राउटर है जो कि आपका ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस के साथ कनेक्टेड होता है। और कुछ यूजर्स आप देखते हैं मोबाइल हॉटस्पॉट को क्रिएट करते हैं मोबाइल ब्रॉडबैंड इंटरनेट के थ्रू टेदरिंग के ऑप्शन से, ओके। सो टेदरिंग क्या करता है, वो स्मार्टफोन को या जो इंटरनेट केपेबल डिवाइस उसको ट्रांसफॉर्म कर देता है पोर्टेबल कम्युनिकेशन डिवाइस में, जो कि अपना इंटरनेट शेयर करता है विद अदर कंप्यूटर्स या डिवाइसेस के साथ, ओके। How internet works? Internet is a network which is divided into two parts. Server. Servers are the main computers. They store and share information with other servers over the internet. We all can use this information. Client. It is a device or software used to access the internet. PC, mobile phone or web browser can be client. We can connect to the internet by using internet service provider. ISP server provides a link between the browser and the internet. ISP server is connected to other internet servers. These other servers are known as host servers. So देखिए इंटरनेट आपको पता है नेटवर्क है जो आपका डिवाइडेड है दो पार्ट्स पे। एक तो है आपका सर्वर, तो सर्वर आपके मेन कंप्यूटर्स होते हैं, ये इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, शेयर करते हैं दूसरे सर्वर्स के साथ ओवर द इंटरनेट। क्लाइंट ये डिवाइस होता है या सॉफ्टवेयर होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए। आपके पर्सनल कंप्यूटर्स है या मोबाइल फ़ोन है या जो वेब ब्राउज़र है, ये क्लाइंट आपके हो सकते हैं। हम इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग ISP, ओके। और ISP जो सर्वर है वो लिंक प्रोवाइड करता है बिटवीन द ब्राउजर एंड द इंटरनेट। सो ISP जो सर्वर है वो आपके दूसरे इंटरनेट सर्वर्स के साथ कनेक्टेड होता है, और ये जो दूसरे सर्वर्स हैं उन्हें हम कहते हैं होस्ट सर्वर्स, ओके। A data travels across the internet with the help of the IP, that is Internet Protocol Address. Computers use set of rules to communicate with each other. This set of rules is called protocol. The IP address is used to transfer the information over the internet. The most commonly used protocols are Internet Protocol and Transmission Control Protocol. These protocols are commonly known as TCP/IP protocols. When we send an email to our friend, message is broken into small packets. These packets travel across the network. Each packet can carry maximum 1500 bytes. Every packet has a wrapper. This wrapper tells what kind of data is in the packet, where did the data come from, and where is it going. Different packets from the same message don't have to follow the same path. This makes internet faster because if one pathway is clogged with traffic, packets can go through a different route. Packets travel from one machine to another until they reach their destination. When computer receives these packets, it assembles the packets and recreates a message. देखिए डेटा आपका ट्रैवल करता है अक्रॉस द इंटरनेट IP की हेल्प से। सो कंप्यूटर्स जो है वो सेट ऑफ रूल्स को इस्तेमाल करते हैं एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। ये सेट ऑफ रूल्स होते हैं प्रोटोकॉल, और जो IP एड्रेस होता है उसका यूज़ किया जाता है कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए ओवर द इंटरनेट। तो जो मोस्ट कॉमन आपके यूज प्रोटोकॉल्स हैं वो है आपके इंटरनेट प्रोटोकॉल, दैट इज़ IP, एंड ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ओके। सो इन्हें कॉमनली कहा जाता है TCP/IP प्रोटोकॉल्स। देखिए जब आप एक मैसेज को सेंड करते हैं अपने फ्रेंड को, तो मैसेज आपके ना छोटे छोटे पैकेट्स में ब्रेक हो जाता है। ये फिर आपके पैकेट्स ये ट्रैवल करते हैं अक्रॉस द नेटवर्क। हर पैकेट जो है वो मैक्सिमम आपका 1500 बाइट्स को कैरी करता है। हर पैकेट में रैपर होता है, और ये रैपर बता रहा है कि किस तरह का जो डेटा है इस पैकेट के अंदर, ये डेटा कहाँ से आया है और कहाँ इसको जाना है। डिफरेंट पैकेट्स सेम मैसेज के, एक सेम मैसेज है उसके डिफरेंट पैकेट्स हों, लेकिन ज़रूरी नहीं है वो कि सारे सेम पाथ को फॉलो करें, ओके। तो इससे देखिए इंटरनेट आपका फास्टर हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर एक पाथवे आपका क्लॉग्ड है ट्रैफिक के साथ, तो पैकेट जो है वो डिफरेंट रूट लेगा, ओके। ट्रैफिक जो है आपके जो पैकेट्स हैं वो एक मशीन से दूसरे में आपके क्या करेंगे, ट्रैवल करेंगे अंटिल दे रीच देयर डेस्टिनेशन। और जब कंप्यूटर इन पैकेट्स को रिसीव करता है ना, तो ये असेंबल करता है पैकेट्स को और फिर मैसेज को रिक्रिएट करता है, ओके। Internet services. Internet provides different types of services. Some important services provided by the internet have become commonplace, like email, message apps, sharing photos on the web using web app through cloud storage, social networking, sharing ideas through blogging, virtual meeting through video conferencing, e-commerce, e-banking, e-learning, searching information on internet, etc. These common services allow people to become a part of the much bigger world. अच्छा, इंटरनेट जो है डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। कुछ इंपॉर्टेंट सर्विसेज आपके जो इंटरनेट आपको प्रोवाइड करता है वो आपके
कॉमन प्लेस बन चुकी है. लाइक आपका ईमेल है, मैसेज ऐप्स है, फोटोज़ को शेयर करना है. ओके, सो ये जो कॉमन सर्विसेज हैं ये लोगों को अलाउ करती हैं कि वो इस बड़े से वर्ल्ड का पार्ट बने रहें. ओके, इलेक्ट्रॉनिक मेल, दैट इज ईमेल. Most commonly known as email, electronic mail started as an afterthought to the internet. Today, email holds a #1 position as the most popular service offered on the internet. A protocol for sending, receiving and storing electronic messages, email has become the preferred method of communication. Email can be delivered instantly anywhere across the globe. We can send email to multiple recipients at the same time. We can attach documents, files, pictures, images, audio, video files to email for free. Email is used for advertising of business and products. Email service is one of the most secure and reliable ways of communicating online. So, electronic mail, जिसे हम email कहते हैं, आप सब इससे familiar होंगे. Okay? तो आपका आज के टाइम अगर हम बात करें तो ये #1 पोजीशन को होल्ड करता है एज अ मोस्ट पॉपुलर सर्विस ऑफर्ड ऑन द इंटरनेट. सो प्रोटोकॉल जो होते हैं ना आपके इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस को सेंड करने का, रिसीव करने का, जो स्टोर करने का है, सो इसकी वजह से क्या हो गया कि प्रेफर्ड मेथड ऑफ कम्युनिकेशन आपका बन चुका है. ओके, सो ईमेल को आप इंस्टेंटली कहीं पे भी दुनिया के किसी भी कोने में आपका कोई पर्सन बैठा हुआ है उसे भेज सकते हैं. मल्टीपल रिसिपेंट्स को भी हम सेम टाइम पे भेज सकते हैं. डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स, फाइल्स, इन सब को हम अटैच कर सकते हैं ईमेल में, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट. बिजनेस का एडवर्टीजमेंट हो या फिर प्रोडक्ट्स का एडवर्टीजमेंट हो, उसके लिए ईमेल का इस्तेमाल किया जाता है. और ईमेल सर्विसेज आपकी बहुत ज़्यादा सिक्योर होती हैं और सबसे हम कह सकते हैं कि बहुत ही रिलायबल वे है ऑनलाइन कम्युनिकेट करने का. ओके, मैसेज ऐप्स. WhatsApp Messenger is a mobile messaging app available for smartphones and other internet-enabled devices. WhatsApp uses internet connection of our device to message and call friends and family. By using WhatsApp, we can send and receive messages, calls, photos, videos, and voice messages. We can enjoy group chats and videos with our contacts and stay in touch. We can also send and receive WhatsApp messages right from our computer browser through WhatsApp app web. अच्छा, व्हाट्सएप मैसेंजर, ये सब इससे तो आप फेमिलियर हैं. आई एम श्योर आप लोग भी अपने फ्रेंड्स को मैसेजेस सेंड करते होंगे व्हाट्सएप के थ्रू, फोटोज़ को शेयर करते होंगे या कोई भी ऑडियो फाइल को शेयर करते होंगे, अपने फैमिली फ्रेंड से चैट करते होंगे या फिर वीडियो कॉल्स करते होंगे. ओके, आप देखिए व्हाट्सएप मैसेजेस को अपने कंप्यूटर से भी सेंड और रिसीव कर सकते हैं एक ब्राउज़र के थ्रू, विच इज़ व्हाट्सएप वेब. ओके, Telegram is an instant messenger app similar to WhatsApp that gives us a simple way to communicate with all of our contacts. Its main focus is on security and speed. It was launched for iOS on 14th August 2013 and Android on 20th October 2013. Telegram भी आपका instant messenger है, WhatsApp की ही तरह है, जिसमें आप अपने जो भी आपके कॉन्टैक्ट में जो हैं कॉन्टैक्ट लिस्ट में उनके साथ आप कम्युनिकेट कर सकते हैं. और वैसे इसका मेन फोकस सिक्योरिटी एंड स्पीड पे होता है. ओके, Google Hangouts is a free chat service that allows its member to participate in text, voice or video chat. The chat can be in the form of one-to-one conversation or group chat involving 10 people at the most. It can be easily installed and used on laptops, desktops and mobile devices. This application is available for different operating systems including Windows, Android and iOS. So Google Hangout आपका फ्री चैट सर्विस है जो ये अपने मेंबर्स को अलाउ करता है कि वो टेक्स्ट, वॉइस और वीडियो चैट में पार्टिसिपेट कर सकें. अच्छा, चैट ना 1-on-1 कॉन्वर्जेशन भी हो सकता है, ग्रुप चैट भी हो सकता है. ओके, और इसमें ग्रुप चैट में आपके 10 लोग हो सकते हैं मैक्सिमम. इसको बहुत ही आसान होता है इंस्टॉल करना और यूज़ करना. आप लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल डिवाइसेस पे कर सकते हैं. ओके, नाउ शेयरिंग फोटोज़ ऑन द वेब. We can share our digital photographs with friends, family and relatives after signing up with photo sharing site. This enables us to upload digital photos that can be viewed, rated, tagged or commented upon by other people. So आप डिजिटल फोटोग्राफ्स को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, रिलेटिव के साथ. आपको जस्ट साइन अप करना पड़ेगा विद फोटो शेयरिंग साइट के साथ. ओके, और यहाँ पे देखिए आप अपने डिजिटल फोटो को अपलोड कर सकते हैं जिसको देखा जा सकता है, रेट किया जा सकता है, टैग किया जा सकता है या फिर लोगों के द्वारा कमेंट किया जा सकता है उन डिजिटल फोटोज़ पे. ओके, फैक्ट फोल्डर. Flickr is the most popular photo sharing site. It allows us to edit our photos, organize them into albums, create cards and books and control the viewing of our photos. A free Flickr account enables us to upload
1 TB of photos. We can upgrade to a pro account, which is a paid account that offers unlimited uploads and storage. Flickr आपका सबसे पॉपुलर फोटो शेयरिंग साइट है. यहाँ पे आप अपनी फ़ोटोज़ को एडिट भी कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं एल्बम्स में, कार्ड्स एंड बुक्स क्रिएट कर सकते हैं. और फ्री जो फ्लिकर अकाउंट है इस पर आप अपलोड कर सकते हैं 1 TB ऑफ फोटोज़, 1 TB. कैन यू इमेजिन? आप प्रो अकाउंट में भी अपग्रेड करना चाहें तो कर सकते हैं, बट हाँ ये पेड अकाउंट होता है, राइट? आपको कुछ पे करना पड़ेगा और फिर आपको अनलिमिटेड अपलोड एंड स्टोरेज आपको ये ऑफर करेगा. ओके. वेब एप्लीकेशन. A web app is an application stored on a web server that we access through a browser. We can interact with web apps directly on a website, sometimes are referred to as the host. Web app host usually provide storage for our data and information on their servers known as cloud storage. Many web app hosts provide free access to their software while others offer part of their web app free and charge for access to more comprehensive services. Google Docs Editor is an example of web app. अच्छा, वेब ऐप एप्लीकेशन होता है आपका स्टोर्ड वेब सर्वर पे, ओके, जो कि हम एक्सेस करते हैं ब्राउज़र के थ्रू. हम वेब ऐप्स के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं वेबसाइट में, ओके. और वेब ऐप्स जो है, जो वेब ऐप होस्ट होते हैं वो यूजुअली स्टोरेज प्रोवाइड करते हैं हमारे डेटा और इन्फॉर्मेशन के लिए उनके सर्वर्स पे, जिसे कहा जाता है क्लाउड स्टोरेज. तो बहुत सारे जो वेब ऐप होस्ट हैं वो फ्री एक्सेस प्रोवाइड करते हैं टू देयर सॉफ्टवेयर, जबकि कुछ जो दूसरे हैं वो कुछ पार्ट है वो ऐप का फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ऑफर करते हैं, कुछ चार्ज लेते हैं, ओके. जैसे गूगल डॉक्स एडिटर है, ये आपका वेब ऐप का एग्जाम्पल है, ओके. सोशल नेटवर्किंग. It is a service that enables us to connect with people who share similar professional interests. The main purpose of using social networking site is to keep track of what is going on in the lives of friends, family and colleagues, especially the people whom we do not meet regularly. Some of the famous social networking sites are Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, etc. Social networking sites से आप सभी लोग familiar हैं, okay? Like आपका Facebook है, Instagram है, Twitter है, Hangout है, आपका Snapchat है. So देखिए, इनकी हेल्प से आप अपने फैमिली, जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो रिलेटिव्स हैं, जो वर्ल्ड के किसी और कॉर्नर में या किसी कंट्री के किसी और कॉर्नर पे, आप उनके साथ टच में रह सकते हैं, ओके. और यहाँ पे देखिए कई बार क्या होता है कि आप जिनके साथ सिमिलर प्रोफेशनल इंटरेस्ट शेयर करते हैं उन लोगों के साथ आप कनेक्टेड रहते हैं, ओके. और आप उन लोगों से कनेक्टेड रहते हैं जिनसे आप रेगुलरली नहीं मिल पाते हैं. फैक्ट फोल्डर. LinkedIn is the world's largest professional network on the internet with more than 500 million members worldwide. It was launched on May 5, 2003 by Reid Hoffman. LinkedIn connects the world's professionals to give them more exposure and make them more productive and successful by finding jobs, people and business opportunities. LinkedIn वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोफेशनल नेटवर्क है इंटरनेट पे. इसमें आपको मालूम है 500 मिलियन मेंबर्स हैं वर्ल्ड वाइड, मोर देन 500 मिलियन. और इसको 5 मई को लॉन्च किया गया था 2003 में बाय रेड हॉफमैन. ये वर्ल्ड के जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनको आप कनेक्ट करता है, जिससे कि मोर ज़्यादा एक्सपोजर मिल सके, ओके. और वो ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकें, सक्सेसफुल हो सकें. बाय हाउ? बाय फाइंडिंग जॉब्स, ओके. वहाँ पे लोग जॉब्स फाइंड करते हैं, लोगों को या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को, इन सबको फाइंड करते हैं, ओके. ब्लॉगिंग. Blogging refers to writing, photography and other media that is self-published online. It is an exciting and dynamic medium by which we can publish our ideas, opinions and stories online. With millions of blogs available on the internet, we can read what others have published. A blog, or web blog, is a website that consists of a frequently updated collection of information and entries. Most blogs focus on a particular topic or subject area, although in a majority of blogs, the subject is the person writing the blog. The entries that appear on a blog are called posts, and the act of publishing a blog is called posting. A single person who maintains many blogs is known as a blogger. Blogger, Typepad, etc. are some of the famous blog hosting services. ब्लॉगिंग का मतलब देखिए क्या है कि मतलब लिखना या फोटोग्राफी करना या कोई भी दूसरा मीडिया जो कि सेल्फ पब्लिश्ड हो ऑनलाइन. ये बहुत ही एक्साइटिंग डायनामिक मीडियम है जिसमें आप अपने आइडियाज़, ओपिनियन, स्टोरीज को ऑनलाइन पोस्ट कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं. मिलियंस ऑफ व्लॉग्स आपको नजर आएंगे जो आपके इंटरनेट पे अवेलेबल होते हैं, ओके.
सो जो ब्लॉग या जिसे वेब ब्लॉग भी कहते हैं, वेबसाइट होती है जहाँ पे फ्रीक्वेंटली अपडेटेड कलेक्शन होते हैं इन्फॉर्मेशन की या एंट्रीज की। तो ज़्यादा जो ब्लॉग्स हैं वो किसी पर्टिकुलर टॉपिक या सब्जेक्ट एरिया पे फोकस करते हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ ब्लॉग्स होते हैं तो जो सब्जेक्ट होता है इज़ अ पर्सन हु इज़ राइटिंग द ब्लॉग, ओके, जो ब्लॉग को लिख रहा है। तो एंट्रीज जो आपके ब्लॉग पे अपीयर होते हैं उनको पोस्ट कहा जाता है, एंड ये जो एक्ट है ना पब्लिशिंग का, अ ब्लॉग, दैट इज नोन एज पोस्टिंग। और सिंगल पर्सन जो ब्लॉग को मेंटेन करता है उसे हम कहते हैं ब्लॉगर, ओके। तो कुछ आपकी ब्लॉग होस्टिंग सर्विसेज हैं आपकी, लाइक ब्लॉगर है आपके पास और टाइपपैड है, ओके। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, video conferencing is a method of communicating with the help of telecommunication technologies. A video conference is a live meeting of two or more geographically separated people who use a network on the internet to transmit audio and video data. For this, all we need is a video conferencing software and multimedia computer along with a microphone, speakers and a video camera attached or built in a computer. As we speak, members of the meeting hear our voice on their speakers. Anything in front of the video camera, such as a person's face, appears in a window on each participant's screen. Zoom and Skype are popular video conferencing apps. Video conferencing देखिए आपके मेथड होता है आप कम्युनिकेट करने का, ओके। वीडियो कॉन्फ्रेंस आपका लाइव मीटिंग होता है जिसमें आपके 2 या 2 से ज़्यादा लोग आपके मीटिंग में होते हैं, ओके। और जो ज्योग्राफिकली सेपरेटेड होते हैं, मींस एक ही सेम एरिया में नहीं होते हैं, अलग अलग जगह पे होते हैं। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए आपको एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, एक मल्टीमीडिया कंप्यूटर की, अलॉन्ग विद अ माइक्रोफोन, स्पीकर्स एंड अ वीडियो कैमरा, जो अटैच्ड होता है या बिल्ट इन होता है आपके कंप्यूटर में। तो जब आप बोलते हैं, जो मेंबर्स होते हैं ना मीटिंग के, वो हमारी आवाज़ों को सुनते हैं स्पीकर्स में, और जो भी आपके वीडियो के फ्रंट में होता है, जैसे कि पर्सन का फेस, वो अपीयर होता है विंडो पे हर पार्टिसिपेंट के स्क्रीन पे। अब कुछ पॉपुलर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप्स की बात करें तो उनमें आपका एक जूम आता है, एक स्काइप भी आता है, ओके। ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और ई कॉमर्स, sometimes called e-business, is a financial business transaction that occurs over an electronic network. Anyone with a computer or mobile device connected to internet and a means to pay, that is credit card, debit card, etc., for purchasing goods or services can participate in e-commerce. Shopping, auctions, finance, travel, entertainment and health are the popular uses of e-commerce. Amazon, Myntra, Snapdeal and Alibaba are the examples of e-commerce websites. So electronic commerce या ई कॉमर्स कह लीजिए, कई बार इन्हें ई बिजनेस भी कहा जाता है, ये फाइनेंशियल बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है जो आपका होता है ओवर एन इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क। सो जो भी आपके कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइस है जो आपके कनेक्टेड है इंटरनेट के साथ, एंड अ मीन्स टू पे, मीन्स क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, गुड्स खरीदने के लिए, सर्विसेज खरीदने के लिए, वो ई कॉमर्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ओके। और जैसे आपके अमेजन, मिंत्रा, स्नैपडील कुछ फेमस ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, आई एम श्योर आप लोगों ने इसमें से ज़रूर शॉपिंग की होगी, ओके। ई बैंकिंग, e-banking or electronic banking is a service by which a customer can perform banking transactions electronically without visiting the bank physically. That is availing the banking services through internet. In internet banking system, the bank has a centralized database that is web enabled. We can access our banking information 24 hours a day, 7 days a week. Its features include range of financial transactions through the website. That is electronic funds transfer for retail purchases, automatic teller machines and automatic payroll deposits and bill payments. E-banking या इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ये सर्विस है जिससे आपका कस्टमर जो है वो बैंकिंग ट्रांजैक्शन को परफॉर्म कर सकता है इलेक्ट्रॉनिकली, बिना बैंक को विजिट किए, है ना। आप घर बैठे जो है आपके ट्रांजैक्शन मनी डिपॉजिट कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं बिना बैंक में गए, ओके। सो इंटरनेट बैंकिंग सिस्टम में बैंक का ना एक सेंट्रलाइज डेटाबेस होता है जो कि वेब इनेबल्ड होता है। आप बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को 24 घंटे 24/7 आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, ओके। फैक्ट फोल्डर, FTP, File Transfer Protocol, is an internet standard that permits file uploading and downloading to and from other computers on the internet. An FTP server is a computer that allows user to upload and or download files using FTP. Web page developers often use FTP to upload their web pages to a web server. FileZilla is an example of FTP services.
FTP आपका इंटरनेट स्टैंडर्ड है जो परमिट करता है फाइल अपलोडिंग को या डाउनलोडिंग को फ्रॉम अदर कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट. सो FTP सर्वर एक कंप्यूटर होता है जो यूज़र को अलाउ करता है कि वो फाइल्स को अपलोड करे या डाउनलोड करे यूजिंग FTP. वेब पेज डेवलपर्स होते हैं वो ज़्यादातर FTP का यूज़ करते हैं अपने वेब पेजेस को अपलोड करने के लिए वेब सर्वर पे. ओके, सो FTP सर्विसेज का एग्जाम्पल है आपके पास फाइलज़िला. E-learning or electronic learning is the delivery of learning and training through digital resources. The COVID-19 pandemic has resulted in schools shut all across the world, which changed education forever dramatically with the distinctive rise of e-learning. Although e-learning is based on formalized learning, it is provided through electronic devices such as computers, tablets, and even cellular phones that are connected to the internet. This makes it easy for users to learn anytime and from anywhere with few restrictions. Google Classroom, Elucidate, Adobe Captivate, Docebo are some popular e-learning platforms. अच्छा, कोविड-19 के टाइम पे आपने देखा होगा कि ऑल ओवर द वर्ल्ड स्कूल आपके शट हो चुके थे, बंद हो चुके थे. तो उस टाइम पे आपकी जो एजुकेशन, जो आपकी जो पढ़ाई थी वो कैसे हुई थी? ऑनलाइन के थ्रू, ऑनलाइन मीडियम के थ्रू हम पढ़ाई कर रहे थे जिसे हम ई-लर्निंग कहते हैं. ओके, सो ई-लर्निंग आपका बेस्ड होता है फॉर्मलाइज्ड लर्निंग पे जो आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू प्रोवाइड की जाती है, चाहे जैसे कंप्यूटर हो, टैबलेट हो, इवन सेलुलर फोन्स हो जो आपके इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होते हैं. इससे जो यूज़र है वो आसानी से सीख सकता है, पढ़ सकता है कभी भी कहीं भी विद फ्यू रिस्ट्रिक्शंस. ओके, सो कुछ आपके पॉपुलर ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म्स आपको यहाँ पे गिवन है. सर्चिंग इन्फॉर्मेशन ऑन इंटरनेट. द इंटरनेट इज़ अ वर्ल्ड वाइड रिसोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन. People use the internet to search for specific information including text, pictures, music and videos. People use it as a search tool to locate information. The World Wide Web or simply web is a means of accessing and sharing information over the internet. It contains millions of documents called web pages. Each page contains text, graphics, video, audio and links to other web pages called hyperlinks. To access and traverse through these web pages, one requires a software program called web browser. The most popular web browsers are Google Chrome, Mozilla Firefox and Internet Explorer. अच्छा, इंटरनेट में आपके पास कितनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगी. ओके, आप इन इन्फॉर्मेशन का यूज़ करते हैं कैसे? आपको सर्च करना पड़ता है किसी स्पेसिफिक किसी टॉपिक पे. ओके, सो पीपल जो लोग हैं वो एक सर्च टूल का इस्तेमाल करते हैं इस इन्फॉर्मेशन को लोकेट करने के लिए. सो www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब आपके पास एक मीन्स ऑफ एक्सेस है आपके पास कि आप इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकें, शेयर कर सकते हैं ओवर द इंटरनेट. इसमें मिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिन्हें वेब पेजेस कहा जाता है. हर पेज में आपके टेक्स्ट, ग्राफिक्स, वीडियो, ऑडियो ये लिंक्स होते हैं टू अदर वेब पेजेस जिन्हें कहा जाता है हाइपरलिंक्स. इनको एक्सेस करने के लिए एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की ज़रूरत होती है जिसे हम कहते हैं वेब ब्राउज़र. तो कुछ पॉपुलर ब्राउजर्स आपको यहाँ पे गिवन है, लाइक आपका गूगल क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स. ओके, अ सर्च इंजन इज अ प्रोग्राम दैट फाइंड्स वेबसाइट्स, वेब पेजेस, images, videos, news, maps and other information related to a specific topic. Search engines are particularly helpful in locating web pages on certain topics or in locating specific pages for which we do not know the exact URL, that is web address. Search engines require a word or phrase called search text that describes the information we want to find. Many search engines use a program called Spider to display a list of all web pages that contain the word or phrase we entered. Also called crawler or bot, a spider reads pages on websites in order to create a list or index of hits. Each hit in the list has a link that when clicked displays an associated website or web page. Most search engines sequence the hits based on how close the words in the search text are to one another and the titles and descriptions of the hits. Thus, the first few links probably contain more relevant information. Google, Bing, Yahoo, TalkPirate, etc. are some popular search engines. Okay, so search engine आपका प्रोग्राम होता है जो वेबसाइट, वेब पेजेस, इमेजेस, वीडियोस इन सब को सर्च करता है. ओके, सर्च इंजन्स आपके पर्टिकुलरली हेल्पफुल होते हैं वेब पेजेस को लोकेट करने के लिए ऑन सर्टेन टॉपिक्स. ओके, या ऑन इन लोकेटिंग स्पेसिफिक पेजेस जिसका हमें एग्जैक्ट URL नहीं पता होता, मीन्स वेब एड्रेस नहीं पता होता है. सो सर्च इंजन को जब एक वर्ड या फ्रेज की रिक्वायरमेंट होती है जिसे हम सर्च टेक्स्ट कहते हैं, जो इन्फॉर्मेशन को डिस्क्राइब करता है कि हम क्या ढूंढना चाहते हैं, क्या सर्च करना चाहते हैं.
तो बहुत सारे सर्च इंजन हैं जो कि प्रोग्राम का यूज़ करते हैं, जिसे कहा जाता है स्पाइडर। ओके, और फिर ये लिस्ट और जितने भी वेब पेजेस उनको डिस्प्ले करता है जिसमें वर्ड या जो फ्रेज जो आपने एंटर किया वो मौजूद होते हैं। ऑल्सो एक का होता है क्रॉलर या बॉट। ओके, स्पाइडर जो है पेजेस को रीड करता है वेबसाइट्स में ताकि वो लिस्ट या इंडेक्स ऑफ हिट्स को क्रिएट कर सकें, और जो हर हिट होगा लिस्ट में उसके पास उसमें एक लिंक होता है कि जब आप क्लिक करेंगे तो एक एसोसिएटेड वेबसाइट या वेब पेज को आपका डिस्प्ले करेगा। ओके, सो बहुत सारे आपके सर्च इंजन्स हैं पॉपुलर, जिसमें आपका आता है गूगल है, याहू है, बिंग है, डॉगपाइल है। ओके, ऑनलाइन सिक्योरिटी। Protecting ourselves is important when you want to send personal information like our bank account or credit card number over the internet. Protecting ourselves means understanding and preventing a number of security and privacy problems. Online security is to establish rules and measures to use against attacks over the internet. These include problems with spyware, viruses, pop-up ads, saved passwords, cookies, and insecure sites. अच्छा, जब भी आप जैसे ना ऑनलाइन आप काम कर रहे हैं, कुछ सर्च कर रहे हैं, वट एवर यू आर डूइंग, अपने आप को प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मीन्स अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि बैंक अकाउंट है या क्रेडिट कार्ड नंबर है, उसे कभी भी किसी के साथ शेयर ना करें। ओके, सो ऑनलाइन सिक्योरिटी का मतलब क्या है कि कुछ रूल्स को इस्टेब्लिश करना जिससे कि जो यूज़ हो सकें अगेंस्ट अटैक्स ओवर द इंटरनेट। सो इसमें आपके कुछ प्रॉब्लम्स इंक्लूडेड है विथ स्पाईवेयर, वायरसेस या पॉपअप एड्स है, ओके, या सेव पासवर्ड्स हैं, राइट। Spyware. Spyware is a software program that gets installed on our computer without our knowledge or consent. This program secretly gathers data from our computer, steals our passwords, and displays advertisement and takes control of our web browser. To remove the spyware from our computer, we need to install an anti-spyware program. अच्छा, spyware आपके सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर में बिना आपकी नॉलेज, बिना आपके कॉन्सेंट के इंस्टॉल हो जाते हैं। ये सीक्रेटली हमारी इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं, डेटा को कंप्यूटर से, हमारे पासवर्ड को चुराते हैं, एडवर्टीजमेंट डिस्प्ले करते हैं और फिर हमारे वेब ब्राउज़र के ऊपर कंट्रोल ले लेते हैं। सो स्पाईवेयर को रिमूव करने के लिए आपको इंस्टॉल करना पड़ता है एंटी स्पाईवेयर प्रोग्राम। वायरसेस। Viruses are programs which are created deliberately to damage data. A virus can badly affect or infect our computer without our knowledge and alter the working of the computer. Once the virus is installed on the computer, our files and operating system may be damaged. Very few viruses are harmless. They display only a simple message. But most of viruses are very harmful. They destroy data or even the entire hard disk, crashing our computer or hijacking our computer to attack these computers. Viruses attach themselves to program files and move with them from disk to disk. To block viruses or remove a virus from our computer, we need to install an antivirus program. अच्छा, viruses आपके programs हैं जो जानबूझ के create किए जाते हैं डेटा को डैमेज करने के लिए। वायरस आपके कंप्यूटर का अफेक्ट कर सकता है, ओके, हमारे जो कंप्यूटर की वर्किंग है उसे ऑल्टर भी कर सकता है। एक बार वायरस आपका इंस्टॉल हो गया कंप्यूटर में तो जो हमारी जो फाइल्स है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो डैमेज हो सकती हैं। बहुत ही कम ऐसे वायरसेस होते हैं जो हार्मलेस होते हैं। ये डिस्प्ले होते हैं एक सिंपल मैसेज में, मतलब सिंपल मैसेज ये डिस्प्ले करते हैं, लेकिन ज़्यादातर वायरसेस आपके हार्मफुल होते हैं। ये आपके हार्ड डिस्क को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, आपके डेटा को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, आपके कंप्यूटर को हाईजैक कर सकते हैं, क्रैश कर सकते हैं, ओके। सो वायरसेस को ब्लॉक करने के लिए या रिमूव करने के लिए हमें एंटीवायरस प्रोग्राम को इंस्टॉल करना चाहिए, ओके। Pop-up ads. Pop-up ad is a sort of advertisement that disturbs our web browsing by appearing in a separate browser window on top of over our current window. Pop-ups are irritating and may also be dangerous because clicking items in the pop-up window can cause spyware or viruses to be installed on our computer. We can use a pop-up blocker to block pop-up ads in the browser. जो पॉपअप ना काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट होता है जो हमारी वेब ब्राउजिंग को डिस्टर्ब करता है। ये क्या अपीयर हो जाता है एक सेपरेट ब्राउज़र विंडो पे और टॉप पे, बड़े ही इरिटेटिंग होते हैं पॉपअप्स और कई बार डेंजरस भी होते हैं, क्योंकि अगर आपने इन पॉपअप विंडो पे क्लिक कर दिया तो हो सकता है कि स्पाईवेयर हो या जो वायरस है आपका इंस्टॉल हो जाए कंप्यूटर में, ओके। सो इसीलिए आपको पॉपअप ब्लॉकर का यूज़ करना चाहिए इन पॉपअप एड्स को ब्लॉक करने के लिए। Saved passwords. When we add username and password to log into a particular website, Internet Explorer or Firefox sometimes displays a prompt message that offers to remember the password we have written. If we click on yes and then access the website in future, the web browser bypasses the login page and takes us directly to the site. Unfortunately, this also means that anyone else who uses our computer can access the site.
Therefore, we should click on no when our web browser asks to remember the password. देखिए कई बार हम ऐड जैसे यूज़र नेम या पासवर्ड को ऐड करते हैं किसी पर्टिकुलर वेबसाइट में, सो एक प्रॉम्प्ट मैसेज आपको शो होता है जो ऑफर करता है कि रिमेंबर द पासवर्ड जो हमने लिखा है. अगर आप येस पे क्लिक करेंगे तो फिर वेबसाइट को एक्सेस मिल जाएगा फ्यूचर में. ओके लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये भी होता है कि कोई जो दूसरा है वो आपके कंप्यूटर को यूज़ करे और उसको वो साइट को एक्सेस कर सकता है. सो हमेशा नो पे क्लिक करें जब भी आपका ब्राउज़र आपसे पासवर्ड को रिमेंबर करने के लिए पूछे. ओके Cookies are small text messages that a web browser stores on a computer to keep track of websites. Cookies can also store usernames and passwords as well as our credit card data. If possible, do not let the site save the data. Most modern browsers allow users to decide whether to accept cookies and the time frame to keep them, but rejecting cookies makes some websites unreadable. Cookies आपके छोटे टेक्स्ट मैसेजेस होते हैं जो वेब ब्राउज़र आपके कंप्यूटर पे स्टोर करके रखता है टू कीप ट्रैक ऑफ वेबसाइट. कुकीज़ आपके यूजर नेम पासवर्ड्स को भी स्टोर करके रखते हैं और साथ ही साथ हमारे क्रेडिट कार्ड डेटा को भी स्टोर करके रख सकते हैं. सो अगर पॉसिबल हो तो कभी भी इन साइट को अलाउ ना करें कि डेटा को सेव करें. ज़्यादातर जो मॉडर्न ब्राउज़र्स हैं आपके वो यूज़र को अलाउ करते हैं कि वो डिसाइड करें कि कुकीज़ को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है. ओके Secure site indicators. At the start of the web address of a secure web page, HTTPS rather than HTTP appears. The web browser will usually display a lock or key on the screen if it is a secured web page. Sometimes the web browser displays a dialog box that alerts us to the fact that we are viewing a web page that is completely secure or unsecure. अच्छा जैसे वेब एड्रेस का स्टार्ट होता है ना किसी भी सिक्योर वेब पेज का, तो उसमें आपका HTTPS शो होता है. ओके रादर देन HTTP. सो जो वेब ब्राउज़र जो आपका यूजुअली उसमें एक ना लॉक आपको डिस्प्ले होगा या की स्क्रीन पे अगर ये सिक्योर वेब पेज है. तो कई बार जो वेब ब्राउज़र है ना वो एक डायलॉग बॉक्स को डिस्प्ले करते हैं जो आपको अलर्ट करता है कि आपका जो वेब पेज जिसे आप व्यू कर रहे हैं वो कम्प्लीटली सिक्योर या अनसिक्योर है. ओके Netiquettes. Internet has changed our lives in many positive ways, but it also has a dark side. Netiquettes are the set of rules to be followed while using the internet. We should practice few techniques to foil attempts to steal our personal data. अच्छा इंटरनेट ने हमारी देखिए अपनी लाइफ को चेंज कर दिया पॉजिटिव वेज में, लेकिन आपको पता है इंटरनेट के डार्क साइड्स भी बहुत हैं. सो नेटिकेट्स आपके सेट ऑफ रूल्स हैं जिन्हें आपको फॉलो करना पड़ता है जब भी आप इंटरनेट यूज़ करते हैं. ओके सो लेट्स लर्न अबाउट देम. Never reveal your address, phone number or any other personal information to a stranger in a chat room. There is a chance that he or she may not be the person she is claiming to be. Never agree to meet an online friend alone. If you go to meet a person, take an elder with you and arrange to meet at a public place like a restaurant or mall. All information available on the internet is not correct. So verify the information through multiple sources before using it. अच्छा कभी भी जैसे ऑनलाइन किसी चैट रूम में आप किसी स्ट्रेंजर से बात कर रहे हैं तो किसी अपना पहले तो स्ट्रेंजर से बात ही ना करें. ओके एंड इफ़ यू आर टॉकिंग टू देम सो कभी भी अपना एड्रेस फ़ोन नंबर कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ना रिवील करें. ओके और कभी भी किसी भी ऑनलाइन फ्रेंड जिसे आप जानते ऑनलाइन फ्रेंड ओके जो सिर्फ आपका ऑनलाइन फ्रेंड हो जैसे आप पर्सनली कभी ना मिले उससे मिलने कभी भी अकेले ना जाएं. अपने एल्डर्स को लेके जाएं किसी कोई एल्डर पर्सन को, और हो सके तो कोशिश करें जो मीटिंग हो ना किसी पब्लिक प्लेस में हो लाइक किसी रेस्टोरेंट में या किसी मॉल में. जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके पास ना अवेलेबल होती है ना इंटरनेट में वो सारी करेक्ट नहीं होती हैं. ओके सो इसीलिए इंफॉर्मेशन को आपने वेरीफाई करना है थ्रू मल्टीपल सोर्सेस. ओके थ्रोबैक. Internet is the largest network that connects millions of computers worldwide. A dial-up access provides an easy and inexpensive way for users to connect to the internet. Broadband internet service is the fastest way to connect to internet. Protecting ourselves means understanding and preventing a number of security and privacy issues. These include problems with spyware, viruses, pop-up ads, saved passwords, cookies, and insecure sites. So students, here comes the end of the chapter and exercise की practice अब आप खुद से करेंगे.